ہم بغیر وقت ضائع کیے بھائی عامر کو اور آج کے کلام کو زوردار تالیوں میں ویلکم کریں گے جی. خدا کے کلام کی تعظیم میں ہم سب کھڑے ہوں گے اور آج ہم بھائی عامر کے وسیلہ سے خدا کا کلام سنیں گے. آمین ہاللیلویہ. آپ سب تشریف رکھیں اور یہ تالیاں جو آپ نے میرے لیے بجائیں ان سب کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں اور میری درخواست ہے کہ یہ سب تالیاں ہم خدا باپ خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے لیے بجائیں گے. ہاللیلویہ. یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ خداوند ہمیں بارہا مواقع بخشتا ہے کہ ہم اس کے حضور میں آ کر اس کی عبادت کریں، اس کی پرستش کریں، اس کی حمد و ثنا کریں، کیونکہ اس نے ہمیں تخلیق ہی اس لیے کیا، ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا کہ ہم اس کی پرستش کریں. ہم خداوند کے شکر گزار ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں شکر گزار ہوں خدا کے خادم اپنے ہم خدمت بھائی پاسٹر تیموتھی جوزف صاحب کا، جنہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ آج آپ کے درمیان میں اپنے ہی گھر میں خداوند کے کلام کی منادی کر سکوں. خداوند ہم سب کو برکت دے اور خداوند اپنے خادم کے ساتھ ہو، اپنے خادم کی منسٹری پر، ان کے سارے خاندان پر خداوند کی برکت ہمیشہ برستی رہے. ہم خداوند کے پاک کلام کی طرف چلیں گے اور آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے یسوع المسیح میں قائم رہنا اور قائم رہتے ہوئے ایک پھلدار مسیحی زندگی گزارنا. اور کلام مقدس میں سے ہم حوالہ پڑھنا چاہیں گے یوحنا کی انجیل، اس کا 15واں باب، اس کی پہلی 10 آیات کی ہم تلاوت کریں گے. یوحنا کی انجیل 15واں باب، اس کی پہلی 10 آیات. انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے. جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے. اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو. تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں. جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے. میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو. جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا اور سوکھ جاتا ہے، اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہیں. اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ. جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے. جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی. تم میری محبت میں قائم رہو. اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے، جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کی محبت میں قائم ہوں. آمین. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. یہ جو ورد ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے تلاوت کیا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قائم رہنا جو لفظ ہے وہ 10 آیات میں 10 دفعہ آیا ہے، اور ساتھ ہی اس کے پھل لانا یا پھل قائم رہنا یا پھل لاؤ یہ 6 دفعہ آیا ہے. تو ان دونوں باتوں سے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قائم رہنا اور پھل لانا کی کتنی اہمیت ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیوں ضرورت پڑی کہ یسوع مسیح نے یہ بات کہی کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم میری ڈالیاں ہوں. آپ سب جانتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح نے 7 سٹیٹمنٹس دی ہیں آئی ایم، میں ہوں میں ہوں میں ہوں، جن میں سے ہم جانتے ہیں یسوع مسیح نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں، دروازہ میں ہوں، دنیا کا نور میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں. اور یہ جو ہم نے سٹیٹمنٹ پڑھی ہے یسوع مسیح کی، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، یہ 7ویں اور آخری سٹیٹمنٹ ہے جو یسوع مسیح نے دی کہ میں ہوں. اور یسوع مسیح اس میں تشبیہاً انگور کے درخت سے، انگور کی بیل سے اپنے آپ کو تشبیہ دے رہے ہیں کہ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں اور تم میری ڈالیاں ہو. اور اس بات کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ وہاں پر
बहुत बड़ी भीड़ मौजूद नहीं है। जिस तरह यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चला गया, या बहुत बड़ी भीड़ थी और वो भीड़ को देखकर कश्ती में चला गया, या बहुत सा हजूम उसके पीछे था। इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के शागिर्द और यीशु मसीह मौजूद है, और शागिर्दों के साथ ये बातचीत हो रही है, और सिर्फ यीशु मसीह शागिर्दों से बात कर रहे हैं। शागिर्दों का कोई जवाब नहीं, इसमें सिर्फ यीशु मसीह की तरफ से डायलॉग किया जा रहा है। यीशु मसीह बात कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो, और मुझ में कायम रहना, मुझ में कायम रहते हुए तुम फल लेकर आना और तुम्हारा फल कायम रहे। इस बात की जरूरत यीशु मसीह को इसलिए पेश आई, 15वें बाब का गहरा ताल्लुक 12वां, 13वां और 14वां बाब से है। ये वाकयात जो हैं ये 12वें बाब से शुरू हो जाते हैं, और हम देखते हैं कि ये यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत का मसलूबियत से पहले आखिरी हफ्ता है जिसमें ये बातें हो रही हैं। आखिरी हफ्ता मसलूबियत से पहले यीशु मसीह अपने शागिर्दों को लेकर जमा है आखिरी फसा खाने के बाद, और अपने शागिर्दों से ये बात कर रहे हैं। और ये शागिर्दों के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ भी है। शागिर्दों को कोई पता नहीं कि इसके पीछे क्या हुआ है या क्यों ये बातें ऐसी की जा रही हैं, लेकिन यीशु अल मसीह जानता था, क्योंकि वो आया ही इसलिए था। यीशु अल मसीह जो इख्तियार कुल है, जिसके कहने से आलम पैदा हुए हैं, जो इब्तदा और इंतहा, जो अल्फा और ओमेगा, जो जहाँ से बोता नहीं है वहाँ से काट लेता, और जहाँ बखेरता नहीं वहाँ से जमा कर लेता। जिसने यूहन्ना रसूल को, जब वो पतमस के जजीरा में था, उसने कहा मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, देख मैं मर गया था, अब्दुल्लाबाद जिंदा हूँ, आलमी मौत और आलमी अरवाह की कुंजियाँ मेरे पास हैं। उसको सारी चीज़ों का इल्म था और उसके प्लान में थी ये सारी चीज़ें। हुआ ये था कि जब 12वें बाब में हम पढ़ते हैं यीशु बैतनिया में मौजूद है, किसी फैमिली ने उसको डिनर पे इनवाइट किया। जब डिनर पे इनवाइट किया तो वहाँ पर यीशु मसीह के शागिर्द भी मौजूद हैं। ये वही गांव है जहाँ पर यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया, उसके गांव में यीशु मसीह मौजूद हैं। और जब वो खाना खा रहे हैं तो एक औरत यीशु मसीह के पाँव पर इत्र डालती है और अपने बालों से उसके पाँव को साफ करती है, पोंछती है। एक शागिर्द है वहाँ पर जिसको हम कभी बोलता हुआ नहीं देखते। अगर वो बोला भी है तो बहुत कम बोला है, लेकिन वो जब भी बोला उसने कोई अजीब ही बात की है। और वो शागिर्द जब ये हुआ है उसी वक्त वो चुकन्ना हो गया और उसने कहा ये ऐसा क्यों कर रही है कि इसने 30 दिनार का या 300 दिनार का, उसने वहाँ पर अमाउंट भी बता दिया कि इतनी अमाउंट का इत्र इसने क्यों ज़ाया किया। ये तो गरीब गुरबा को खाना खिलाया जा सकता था, उनकी हेल्प की जा सकती थी। तो यीशु मसीह ने कहा कि ये तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उसने जो कुछ होने वाला है, उसने अपनी मसलूबियत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो कुछ होने वाला है उसने मेरे दफन की, मेरे कफन की, मेरी मसलूबियत की तैयारी की है। और वो शागिर्द जो है वो यहूदा अस्करियोती है। ये बहुत प्रोमिनेंट शागिर्द था, आम शागिर्द नहीं था। ये उस ग्रुप का मेंबर था जो यीशु मसीह ने चुने हुए थे। 12 को यीशु मसीह ने चुना था और उनमें से ये बहुत ही अहमियत का हामिल था। हिसाब लगा लें कि ये उनका खजानची था, चंदे की थैली इसके पास होती थी। लेकिन ये बोलता नहीं था। बोलता इसलिए नहीं था, जो मक्कारी और रियाकारी इसके अंदर छिपी हुई थी वो कहीं अनजाने में इसकी जुबान पर ना आ जाए, अचानक कोई ऐसी बात ना हो जाए ताकि शागिर्द इस पर अटैक ना कर दे, इस पर हमला ना कर दे। क्योंकि वहाँ पर पतरस भी मौजूद होता था, और पतरस तो ऐसा था कि कुछ ऐसी बात होती थी तो एक पहले देता था, बात बाद में करता था। गतसमनी का वाक़या आपको याद होगा कि उसने कहानी उड़ा दिया था तलवार से। फिर ऐसी बातें भी हुई कि उसने यीशु मसीह को कहा कि इन्हू जरा सिद्धियाँ कर लिए, बाद बाकी गल करांगे। तो पतरस ऐसा था, इसलिए यहूदा अस्करियोती हमेशा खामोश ही रहता था कि जो चलता है चलने दो, जब वक्त आएगा तो फिर जो करना है वो करेंगे। खामोश रहता था, मक्कार था, रियाकार था। लेकिन ये क्राइस्ट चर्च का रेगुलर मेंबर था। ये चर्च यीशु मसीह ने कायम किया हुआ था अपने शागिर्दों का, अपने लोगों का। ये उस जमात का रेगुलर मेंबर था, कोई इबादत मिस नहीं करता था। ये बहुत ही रेगुलर था, बाकायदगी से जाता था। उनकी दुआया मीटिंग का भी ये मेंबर था,
ان کے کھانوں کا بھی یہ ممبر تھا. ہر جگہ پہ یہ ساتھ 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 ہے. لیکن اس نے یسوع مسیح کو کبھی بھی دل سے قبول نہیں کیا. یسوع مسیح پر کبھی بھی یہ دل سے ایمان نہیں لے کر آیا. اس نے اس کو قبول ہی نہیں کیا, اس نے اس کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. لیکن ریاکاری سے دوسروں کو دکھانے کے لیے رہتا ساتھ ساتھ ہی ہے. چرچ کا یہ ریگولر ممبر ہے, ہر وقت ساتھ ہے, ان سے سیکھتا بھی ہے. کیا یسوع مسیح جب بھیڑ کو کلام سناتے تھے یا تمثیلیں دیتے تھے یا خدا کی بادشاہی کی منادی کرتے تھے تو یہودا اسکریوتی نہیں سنتا تھا؟ سنتا تھا. اس کو موقع بھی دیا گیا توبہ کا. بے شک یہ سب کچھ پہلے سے بنائے عالم کے پیشتر یہ پلان تھا, لیکن اس کو بھی موقع دیا گیا جو اپنی حرکت سے باز آ جائے, اپنے گھنونی حرکتوں سے, اپنے کردار سے, اپنی سوچ سے باز آ جائے. لیکن اس نے وقت کو غنیمت نہیں جانا. وہ اپنی مکاریوں میں لگا رہا اور اپنے فائدہ کے لیے وہ یسوع مسیح کے ساتھ اٹیچ رہا. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی بہت سے ایماندار, یہ بات ایمانداروں سے ہو رہی ہے, عام لوگوں سے نہیں ہو رہی. شاگرد جو تھے صرف وہ تھے جہاں پر جو چنے ہوئے, جو ان سے کلام کیا یسوع مسیح نے. اور آج بھی بہت سے ایماندار افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ریاکاری میں لگے ہوئے ہیں. وہ چرچ کے ریگولر ممبر ہوتے ہیں, ہر میٹنگ کا وہ باقاعدگی سے حصہ ہوتے ہیں, لیکن ان کے اندر ایک ریاکاری, ایک مکاری ہوتی. اپنے فائدے کے لیے وہ چرچ کا سہارا لیتے ہیں. لیکن خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ ہمیں لائل ہو کر, وفادار ہو کر, پورے دل سے, پوری جان سے, پوری طاقت سے, جو کچھ ہم اندر سے ہیں وہی باہر سے ہوں. ہمارے جو اندر ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے, جو باہر ہوتا ہے وہ ظاہری دکھاوا, ریاکاری ہوتی ہے, یہودا اسکریوتی کی طرح. اور دیکھتے ہیں کہ اس کا انجام جو تھا وہ ڈالی, کاٹ ڈالی گئی اور آگ میں پھینکی گئی. اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا. جس طرح یسوع مسیح کی پیدائش کے لیے, اس کی پیدائش کے بارے میں, اس کی مصلوبیت کے بارے میں پیشن گوئیاں ہوتی رہیں, خدا باپ کلام کرتا رہا انبیاء کے وسیلہ سے, اپنے خادمین کے وسیلہ سے, اسی طرح یہودا اسکریوتی کے بارے میں بھی پرانے عہد نامے میں پیشن گوئیاں موجود ہیں. زبور میں لکھا ہوا ہے کہ میرا اپنا جو میرے ساتھ روٹی کھاتا, میری روٹی کھاتا, اس نے مجھ پر لات ماری. میرے اپنوں نے میرے ساتھ بددیانتی, بے وفائی کی. اور نکالیں ایک حوالہ ہم پڑھ ہی لیتے ہیں زکریا کی کتاب پرانے عہد نامے میں سے. زکریا کی کتاب 11واں باب, اس کی 12ویں آیت, 12ویں اور 13ویں آیت. اور میں نے ان سے کہا کہ اگر تمہاری نظر میں ٹھیک ہو تو میری مزدوری مجھے دو, نہیں تو مت دو. اور انہوں نے میری مزدوری کے لیے 30 روپے تول کر دیے. اور خداوند نے مجھے حکم دیا کہ اسے کمہار کے سامنے پھینک دے, یعنی اس بڑی قیمت کو جو انہوں نے میرے لیے ٹھہرائی. اور میں نے یہ 30 روپے لے کر خداوند کے گھر میں کمہار کے سامنے پھینک دیے. اور یہ پیشن گوئی جو ہے ہم متی کی انجیل میں دیکھتے ہیں, اس کے 26ویں باب میں وہاں پر لکھا ہے کہ اس وقت ان 12 میں سے ایک نے, جس کا نام یہودا اسکریوتی تھا, سردار کاہنوں کے پاس جا کر کہا, اگر میں اسے تمہارے حوالے کر دوں تو مجھے کیا دو گے؟ انہوں نے اسے 30 روپے تول کر دے دیے, اور وہ اس وقت سے اس کے پکڑوانے کا موقع ڈھونڈنے لگا. یہ سب کچھ خدا کا پلان تھا. اور یسوع مسیح نے یہاں تک کہا تھا کہ ابن آدم کے حق میں تو جیسا لکھا ہے, جو کچھ ہونا ہے وہ ہونا ہی ہے, لیکن افسوس اس پر جس کے وسیلہ سے یہ ہو. یسوع مسیح پھر اس کو اشارتاً بھی کہتے رہے, اس کو تمثیلاً بھی کہتے رہے. اور جب وہ فسح کھا رہے تھے, بالا خانہ پر موجود تھے, اس وقت بھی یہ گفت و شنید ہوتی رہی. اور یسوع مسیح نے کہا, تم میں سے ایک شیطان ہے جو مجھے پکڑوائے گا. اس وقت بھی اس کے پاس موقع تھا کہ یہ توبہ کر لے, یسوع مسیح کو قبول کر لے, ایمان لے آئے, اپنی بے وفائی سے, اپنی حرکتوں سے باز آ جائے. لیکن تب بھی اس نے توبہ نہیں کی. اس نے یسوع مسیح کو نہیں جانا. یہ اپنی من مانی کی زندگی گزارتا رہا اور اپنے مقاصد کے لیے اس کے ساتھ لپٹا رہا. اور جب دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے ہیں, وہاں پر یسوع مسیح نے کہا ہے کہ تم سب کے سب پاک نہیں ہو,
क्योंकि उस वक्त तक यहूदा अस्करियोती उस ग्रुप में था, शागिर्दों के साथ मौजूद था। और उसी वक्त से सरदार काहिन भी ये मौका ढूंढ रहे थे कि हम किस तरह इसको पकड़ें। तो उनकी जो हेल्प की है, उनका जो मददगार बना है, वो यीशु मसीह का अपना ही बना, उसके ग्रुप का मेंबर ही बना। और उसने जाकर उनसे सौदेबाजी की कि अगर मैं पकड़वा दूं तो आप मुझे क्या दोगे। उन्होंने कहा जी 30 सिक्के उन्होंने तोल कर दे दिए, ये लो और पकड़वा दो। और उसने ऐसा ही किया, 30 सिक्कों में उसने बेच दिया। इस बात से हम सब वाकिफ हैं। तो ये बात फिर यीशु मसीह ने शागिर्दों के साथ की कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, तुम मेरी डालियां हो, यहूदा की तरह काट ना डाले जाओ, बल्कि तुम मुझ में कायम रहो। जब तुम मुझ में कायम रहोगे तब ही मेरे शागिर्द ठहरोगे। आज यहूदा अस्करियोती का नाम अच्छे अल्फाज में नहीं लिया जाता, लेकिन इसके बरक्स हम एक और डाली को देखते हैं, काट वो भी डाली गई। एक डाली यहूदा अस्करियोती है जो अपनी हरकतों की वजह से, अपनी मनमानियों की वजह से, अपने मतलब की वजह से काट डाला गया, शागिर्दों में से काट डाला गया, दरख्त से काट डाला गया। लेकिन एक डाली और भी है, काटा वो भी गया, लेकिन उसने वक्त को गनीमत जाना, उसने वक्त की कदर की, वो पहचान गया था। लेकिन इंसान होते हुए वो गिरता है, लेकिन यीशु मसीह उसको फिर उठा खड़ा करते उसके इकरार पे। पतरस की बात कर रहा हूं मैं। पतरस के बारे में आपको याद है कि बड़े दावे किए कि मैं तेरे साथ मरने को भी तैयार हूं। और जब यीशु मसीह को पकड़ कर ले गए, वहां पर एक औरत से डर गया। उसने कहा कि तू भी उसके साथ है ना, हमने तुझे भी देखा। कहना नहीं 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 नहीं, मैं इन्हू जानता ही नहीं। यीशु मसीह से इनकार ही कर दिया उसने कि मैं तो नहीं इसको जानता। जैसे ही उसने इनकार किया, उसका नाम शागिर्दों में से काट डाला गया। इस दरख्त से वो भी काट डाला गया। मरकस की इंजील निकालें, उसका 16वां बाब। जब औरतें कब्र पर जाती हैं, यीशु मसीह जिंदा होते हैं, तो फिर उन औरतों को क्या जवाब मिलता है वहां पर। मरकस की इंजील उसका 16वां बाब, और उसकी पढ़ेंगे हम 6ठी आयत, 6ठी और 7वीं। उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो, तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो। वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। देखो, ये वो जगह है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो। जी, शागिर्दों को और पतरस को। पतरस को जो संदेशा भेजा जा रहा है, अगर वो शागिर्दों का हिस्सा होता तो फरिश्ता ने कहा जाओ जाकर शागिर्दों को बता दो। लेकिन फरिश्ता ने ये खास तौर पर कहा कि उसके शागिर्दों को और पतरस को बता दो, क्योंकि पतरस इनकार कर बैठा था। वो भी उस दरख्त से काट डाला गया था। लेकिन इससे पहले कि वो आग में झोंका जाता, वो जल जाता, उसको इस बात का एहसास होता है। मुफक्किरीन कहते हैं कि यूहन्ना की इंजील का 21वां बाब लिखा ही इसलिए गया ताकि पतरस बहाल हो सके। यीशु मसीह उसके दिल से, उसके ख्यालों से पहले से ही वाकिफ था। पतरस ने उसकी खिदमत भी की थी और इंजील की मुनादी के लिए काम भी किया था। इसलिए यीशु नहीं चाहता था कि पतरस को खो दे। और बारहा उसने पतरस को कहा भी कि मैंने तेरे लिए दुआ की कि शैतान तुझे छीन ना ले, या तू मुझसे मिस ना हो जाए, मैं तुझे खो ना दूं। खैर, ये कि पतरस ने जब यीशु मसीह फिर जब जिंदा होकर आते हैं, उनके साथ शागिर्दों के साथ बैठते हैं, 7 शागिर्द झील पर मछली पकड़ रहे होते हैं, उस वक्त फिर इकरार करवाया जाता है और पतरस फिर उस दरख्त के साथ अटैच हो जाता है। यूहन्ना की इंजील 15वें बाब में जो हमने विर्द पढ़ा है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, इसमें यीशु मसीह ने शागिर्दों को आने वाले यानी मुस्तकबिल के बारे में भी तैयार किया। परसिक्यूशन के लिए, दुखों के लिए, मसाइब के लिए, उन सारी मुसीबतों के लिए जो यीशु मसीह के बाद आने वाली थी, उनके बारे में भी यीशु मसीह ने उनको आगाह किया कि लोग तुम्हारे साथ अदावत रखेंगे, तुम्हारे कामों की वजह से नहीं, मेरे नाम की खातिर। क्योंकि जब तुम मेरी इंजील की मुनादी करोगे, लोगों को बिशारत दोगे, तो तुम्हें इबादत खानों से खारिज किया जाएगा। तुम्हारी ज़मीनें, जायदाद, बच्चे, सब कुछ जो है वो जब्त किया जाएगा
जुल्म व सितम किया जाएगा, जान से मारे जाओगे। मुमकिन है कि पतरस इस डर से, इस परसिक्यूशन की वजह से, क्योंकि उसके आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था जब यीशु मसीह को पकड़ कर लाए, मुमकिन है इंसान होते हुए वो उस वक्त डर गया हो। बेशक ये सारी बातें पहले से तयशुदा थी, लेकिन डर की वजह से उसने भी इनकार कर दिया हो। लेकिन जब उसको यीशु मसीह ने इकरार करवाया तो फिर उसको बरकत दी है। पतरस अपने इकरार पर फिर कायम हुआ है, रिवाइव हुआ है, बहाल हुआ है। खुदा बहाली का खुदा है, वो हमें बहाल करता है, क्योंकि इंसान होते हुए हम कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जब हम दिल से उसके पास आकर इकरार करते हैं, उससे माफ़ी मांगते हैं, तो वो हमें बहाल करता है। और पतरस को जब उसने बहाल किया, पतरस से वो वाकिफ़ था। ये वही पतरस है, जब हम 12वें बाब का मुताला करते हैं तो 12 से 15वें तक मुताला करें तो ये सारी बातें हमें पता चलती हैं, खुदा का कलाम हमें याद करवाता है। और लूका की अंजील 5वें बाब में हम देखें तो पतरस और इसका भाई इंद्रियास और बाकी शागिर्द जो है, ये सारी रात गुजार देते हैं मछली पकड़ने में, कोई मछली हाथ नहीं आती। और ये इनका कारोबार है, ये कोई हॉबी नहीं है, कोई शौक नहीं कि मछली हाथ आई तो आई, ना आई तो ना सही। ये इनका कारोबार था और मछली हाथ नहीं आई, परेशान बैठे, थके हारे, मायूस। यीशु मसीह वहाँ पर मनादी करते हुए आते हैं और देखते हैं कि भीड़ बहुत है। किनारे पर खड़े होकर तालीम देना गोया मुश्किल लग रहा है, क्योंकि धक्कम पेल की वजह से हो सकता है कोई भीड़ में से झील में जा गिरे या कोई धक्का देकर यीशु मसीह को झील में गिरा दे। तो उसने एक कश्ती का इंतखाब किया, पतरस की कश्ती है वो। तो पतरस को भीड़ को कलाम सुनाने के लिए कहते हैं कि पतरस मैं तेरी कश्ती इस्तेमाल कर लूँ। पतरस ने कहा जी बिल्कुल, वेलकम। पतरस सोच सकता था कि यार सारी रात मछलियाँ फटते रहे, थके हारे, ये वो, सुबह उन पादरी साहब आ गए ने फिर कि जी कश्ती ले आओ तो चलिए मनादी ली, सोच सकता था वो। लेकिन उसने क्या किया, उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा करते हैं कि जी आप कश्ती ले लो और मुनादी करो। जैसे ही यीशु मसीह ने उसकी कश्ती पर मुनादी की है तो यीशु मसीह उसको नहीं भूले, क्योंकि उसने अपने रिसोर्सेज, अपनी लाइफ उसके हवाले की थी। पतरस को यीशु मसीह नहीं भूले। पतरस को कहा कि लो जी मुनादी हो गई, अब आप थोड़ा सा गहरे में चलो और मछली पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। पतरस उस वक्त कहता है कि मालिक हम एक्सपर्ट हैं, तजर्बाकार हैं, सारी रात हम मछलियां पकड़ते रहे हैं, झील के चप्पे चप्पे से, कोने कोने से वाकिफ हैं, वक्त से वाकिफ हैं, किस वक्त मछली होती है किस वक्त नहीं होती। सारी रात हम मेहनत करते रहे, कोई मछली हाथ नहीं आई। चलें ऐसा करता हूं कि तेरे कहने से जाल डाल देता हूं। और जब जाल की डाला तो जाल खाली वापस आ गए। ऐसा ही हुआ ना, ऐसा ही है। क्या हुआ था, जैसे ही उन्होंने जाल डाले, मछलियों की कसरत की सबब से उनके जाल फटने लगे। और जाल फटने लगे, फिर साथ उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया कि भाइयों आओ हमारी मदद करो। और जब वो भी आए तो लिखा है कि उनकी कश्तियां डूबने लगी। ये यीशु मसीह की बरकत थी जो वो पतरस को दे रहा था। और उस वक्त उसने पतरस को महसूस कर दिया कि ये तो बहुत सारी मछलियां ये तुझे सिखाने के लिए मैंने की हैं, मैं तुझे अपनी खिदमत के लिए तैयार करता हूं, चुनता हूं, महसूस करता हूं। आज के बाद तुम मछलियों का नहीं बल्कि आदमियों का शिकार करेगा। और जब यीशु मसीह ने उसको महसूस कर दिया, उसको खिदमत दे दी, पतरस जो एक औरत से डर गया था, बुज़दिल हो गया था, इनकार कर गया था, अब पाकरू की दिलेरी की वजह से अमाल के दूसरे बाब में हम देखते हैं कि वो शागिर्दों के साथ खड़ा हुआ, उसने मुनादी की है, उसने खुदा का कलाम लोगों को बयान किया और लोगों के रूबरू उनको कह रहा है कि तुम लोगों ने उसको मसलूब किया, तुमने उसको मार दिया, तुमने उस पर जुल्म किए, लेकिन वही खुदा जिस यीशु को तुम लोगों ने मारा, मसलूब किया, खुदा ने उसी मसीह को जलाया, मुर्दों में से जिंदा किया और उसको मसीह भी किया और उसको खुदा भी किया। जब लोगों ने ये कलाम सुना तो वो कहने लगे कि हमें बताओ हम क्या करें। पतरस ने कहा जिस यीशु को तुमने मसलूब किया उसी यीशु के नाम पर बपतिस्मा लो, तौबा करो। जब तौबा की है, लोगों ने बपतिस्मा लिया, ईमान लेकर आए, तो लिखा है कि 3000 के करीब उसी दिन कलीसिया में शामिल हो गए। ये थी वो डाली जो काट तो डाली गई लेकिन फिर कायम की गई। यीशु मसीह ने उसको इकरार करवाया। मेरे अजीजों, कहना मैं ये चाहता हूं कि हम जब अंगूर के दरख्त के साथ पेवस्त हैं, बागबान ने हमें उसके साथ पेवस्त किया है, बाप ने,
जब बाप ने हमें उसके साथ पेवस्त किया तो फिर वो चाहता है कि हम फल लेकर आएं। ऐसे ही वो हमारी परवरिश नहीं करता, ऐसे ही वो हमें संभालता नहीं है। उसने हमें पेवस्त किया है ताकि हम फल लाएं, और ये एक प्रोसेस है, एक दिन का काम नहीं है ये। किस तरह हम उसमें कायम रह सकते हैं? हम उसमें कायम रह सकते हैं, इस प्रोसेस के 3 हिस्से हैं: जस्टिफिकेशन, सेंटिफिकेशन और ग्लोरिफिकेशन। जस्टिफिकेशन वो होती है कि जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं, उस पर ईमान लेकर आते हैं, तो लिखा है रोमियो के खत में, पौलुस कहता है कि बाप हमें मुफ्त में रास्तबाज ठहरा देता है। ये हमारी जस्टिफिकेशन है, ये हो गई है। जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं, उसके कफारा पर ईमान लेकर आते हैं, तो बाप हमें रास्तबाज ठहरा देता है। ये हो चुकी है। अब इसको कायम रखना हमारा काम है। हम इसमें कायम रहें तो उसकी बादशाही में जाएंगे। अगर हम इससे मुनहरफ हो जाते हैं, इससे काट डाले जाते हैं अपने कामों की वजह से, अपने तर्ज ज़िंदगी की वजह से, अपने रोज़मर्रा के कामों की वजह से, तो फिर जो हम जस्टिफिकेशन जो होती है, रास्तबाज ठहरा जाते हैं, तो फिर उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। बाप ने और बेटे ने तो वो काम कर दिया है जो उसने करना था, अब ये हमारा काम है। उसके बाद सेंटिफिकेशन होती है, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। सेंटिफिकेशन यानी मुकद्दस करना, अपने आप को पाक करना, दुनिया से अलहदा कर लेना। और यूहन्ना अपने ख़त में कहता है, यही यूहन्ना जिसकी हमने इंजील पढ़ी, अपने ख़त में कहता है कि तुम दुनिया के नहीं, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना दुनिया की चीज़ों से। कहने का उसका मतलब ये है कि दुनिया का जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, जिसको ख़राब जहान कहा गया, इससे मोहब्बत नहीं रखो, बल्कि अपने आप को हर रोज़ पाक करते जाओ। हर रोज़ पाक करना है हमें। और वो जो पाकीज़गी है, खुदावंद का पाक कलाम है। खुदा का कलाम पाक है, ये रास्त है। जब हम इसको पढ़ते हैं, इसको सुनते हैं, तो ये हमें पाक करता है। और यूहन्ना की इंजील के जो इसके पिछले अबवाब हैं, उसमें यीशु मसीह ने यह भी कहा है कि मुजरम ठहराने वाला मैं नहीं, अदालत के दिन मैं तुम्हें मुजरम नहीं ठहराऊंगा, मुजरम तुम्हें ये कलाम ठहराएगा जो तुम्हें सुनाया गया है। जो बातें आप सुनते हैं उस पर अमल करते हैं तो रास्त ठहरते हैं, अगर नहीं अमल करते तो फिर हम मुजरम ठहरा जाते हैं। अजीज़ों, हमें हर रोज़ इस पाकीज़गी में बढ़ना है, खुदा के पाक कलाम के साथ, ईमानदारों की रफ़ाकत के साथ, और सबसे इम्पोर्टेंट कि इशाए रबानी के वसीला से हम उसमें कायम रहते हैं। पौलुस करंथियों के 11वें बाब में कहता है कि हम उसके बदन को खाते और उसके खून को पीते हैं तो हम उसको याद करते, उसकी यादगारी में होते हैं। और यही बात यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में भी कहा कि जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है। कायम रहने के लिए हम उसके कलाम को पढ़ें, ईमानदारों की रफ़ाकत में रहें, और हम उसके इशाए रबानी में, उसके खून और गोश्त में शरीक होते रहें। और तीसरा जो प्रोसेस है वो है, तीसरी जो स्टेप है वो है ग्लोरिफिकेशन। वो अभी होने वाली है। आपने पहले खुदा के खादम से ये सुन चुके हैं कि जब हम इस जहान फ़ानी से चले जाएंगे, थसलनीकियों के ख़त में ये लिखा हुआ है कि ये जो बदन है ये फ़ानी है, ये ज़रूरी है कि बका का जामा पहने। और जिस तरह यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर जलाली बदन में आए हैं, तब्दील हुए हैं, हमारी भी इसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन होगी। हम भी इस बदन से, इस जिस्म से, ये जिस्म जाता रहेगा और ये हयात अब्दी का जामा पहनेगा जो हमारा जलाली बदन है। अब जस्टिफिकेशन हो गई, सेंटिफिकेशन और ग्लोरिफिकेशन के लिए मुझे और आपको रोज़ बरोज़ बड़ी वफादारी, दयानतदारी और दिल से, रियाकारी से नहीं, दिल से हमें खुदा के हुक्मों पर अमल करना है। फार्मूला यीशु मसीह ने आगे 10वीं आयत में दिया है कि जिस तरह मैं बाप में हूँ इसी तरह तुम मुझ में कायम रहोगे। और मैं बाप में कायम कैसे हूँ कि मैं उसके हुक्मों पर अमल करता हूँ, मैं उसकी बातों को सुनता हूँ और उस पर अमल करता हूँ, वही करता हूँ जो बाप कहता है। आज अगर मैं और आप यीशु मसीह में कायम रहना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को फलदार बनाना चाहते हैं, रूह का फल तो हमारी ज़िंदगी में लग जाता है जो गलतियों 5 बाब में लिखे हुए हैं कि नेकी, इत्मीनान, तहम्मुल और बहुत से जो लिखे हैं, वहाँ पर जो रूह का फल लिखा हुआ वो तो लिखा है। लेकिन हमारी ज़िंदगी से जो फल लगना है वो ये है कि हम खुदा के कलाम की मुनादी करें, अपनी ज़िंदगी को इसके मुताबिक गुजारें और उन लोगों तक पहुँचे जो अभी तक खुदा के बेटे से नावाकिफ़ हैं, उसके कलाम से नावाकिफ़ हैं, ताकि वो खुदा की बादशाही में हमारे साथ
शरीक किए जाएं। मेरी दुआ है कि खुदावंद हम सबको तौफीक दे कि हम अंगूर के दरख्त के साथ बड़ी वफादारी के साथ जुड़े रहें, उसके साथ लिपटे रहें, उसमें रहते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारें, ताकि हम काट ना डाले जाएं बल्कि हम फल लाएं और हमारा फल कायम रहे। खुदावंद हम सबको सुने हुए कलाम के वसीला से बरकत दे।